Hello children, today I am going to explain to you lesson number 9, soil. You all of you know what is soil. Soil means mitti. In Hindi we call it mitti. Soil is a natural resource and very important natural resource. It provides all the plants they grow in soil. It provides anchorage to the plant. Plants को उगने के लिए जगह मिलती है. Supplies water and nutrients to the plant. It is also home for many organisms. And soil is very essential for agriculture. And why agriculture is essential? Because with agriculture we get food, clothing and shelter. So therefore soil is a very important and inseparable part of our life. Have you ever noticed that after the summer season, when the first rain comes, the earth's fragrance of the soil, earthy fragrance of the soil, मिट्टी की खुशबू आती है, सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी की, which is very refreshing. You feel very nice hearing with that smell. Soil teeming with life. So during rainy season, one day Paheli and Bojo, they observed that earthworm is coming out of the soil. They saw a small earthworm. You know what is earthworm. So Paheli started thinking, she wondered कि only earthworm lives in the soil or other organism also. So let us find out organisms which live in the soil. Activity 9.1. Collect soil samples. अलग अलग जगह से we will collect soil samples. And then examine the sample carefully. Sample को ध्यान से देखेंगे. Discuss your observations with your friends. Are the soil samples collected by your friends similar to the ones collected by you? Bojo and Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. Children, you also must have played with the soil. मिट्टी के साथ आप भी खेले होंगे. मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, सैंड के घर बनाए हैं. इफ़ यू हैव एवर गॉन टू सी शोर, समुद्र के किनारे बच्चे रेत से खेलते हैं, सैंड से. वी कैन मेक हाउसेज विद इट, वी प्ले विद इट. इट्स फन, मज़ा आता है खेलने में. लेट अस सी टेबल 9.1. तो सॉइल फ्रॉम अदर डिफरेंट सोर्सेज. पहले हमने सॉइल ली गार्डन से. यू नो व्हाट इज़ अ गार्डन. देन सॉइल फ्रॉम रोड साइड. देन सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन. कोई मकान बन रहा हो उसके पास से सॉइल लेंगे. नाउ गार्डन सॉइल, अ सॉइल विच इज़ टेकन फ्रॉम द गार्डन. उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें ग्रास होगा, वीड्स होंगे और दूसरे पत्ते वत्ते गिरे होंगे, लाइक दैट. एंड एनिमल्स उसमें होंगे, एंट, अर्थवर्म, अदर many small animals will be there. And then soil from the road side. अगर आप रोड से सॉइल लेंगे तो उस सॉइल में क्या होगा? ग्रेवल मतलब काले काले छोटे छोटे पत्थर होते हैं. ग्रेवल विल बी देयर. सैंड होगा, रेत होगी, सैंड विल बी देयर. एंड मे बी सम पॉलीथीन ऑल्सो विल बी देयर. सम अदर थिंग्स दैट वी थ्रो, जो हम कचरा फेंकते हैं वो भी होगा. रोड साइड इज़ फुल, लॉट ऑफ गार्बेज इज़ देयर ऑन द रोड साइड. एनिमल्स, उसमें हम देखेंगे एंट्स हो सकते हैं, कीड़ी वीड़ी हो सकती है उसमें, और दूसरे भी एनिमल्स हो सकते हैं. छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं, मस्कीटोज ग्रो हो सकते हैं, अदर देन सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन. कोई मकान बन रहा हो उस एरिया से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे प्लांट्स होने के चांसेस कम है. थोड़े बहुत सूखी घास या सम वीड्स ऐसे हो सकते हैं. एनिमल्स हो सकते हैं, रैट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे रैट हैं, बीटल्स हैं, एंट्स हैं, ये हो सकते हैं. So depending upon the source from where you have taken the soil, we can see different plants, animals और बाकी चीज़ें भी उसमें होती है. Now, I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample. Very sad. लेकिन हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स पड़े हैं. ये कहाँ से आए हैं? We have thrown it. Human being has use these polythene bags and thrown them everywhere. Here and there हमें मिलता है plastic bags, polythene bags. Polythene bags और plastic bags जो है वो soil को pollute करते हैं. You know what is pollution? Soil को ख़राब करते हैं. और जो उसमें organisms रहते हैं soil में, like earthworm, जिसको farmers friend बोलते हैं, वो सबको भी मार देते हैं polythene. That is why डिमांड हो रही है कि इंडिया में polythene bags को और प्लास्टिक बैग को बैन करना चाहिए. Other substances which pollute the soil are waste products, chemicals, pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. फैक्ट्री से जो वेस्ट पानी निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं,
पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो सब मिट्टी में जाते हैं, वो सब मिट्टी में जाके मिट्टी को पोल्यूट करते हैं। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज़ मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट, बाज़ार में हमें मिलते हैं। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली इज़ कमिंग, तो हमारे घर में दिए, हम लोग दिए लेके आते हैं। ऑल दैट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल। दिए है, पानी का मटका है, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ सॉइल। नाउ लेट अस सी सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। तो सॉइल में डिस्टिंक्ट अलग अलग लेयर्स हैं। सो लेट अस सी एक्टिविटी 9.2। थोड़ा सा सॉइल लेंगे, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड, और सॉइल के जो भी गड्ढ है उसको हाथ से तोड़ लेंगे और उसके बाद पाउडर बना देंगे उस सॉइल का। ना टेक ए ग्लास टम्बलर, और उसमें 3/4 पानी भर देंगे और बाद में उसमें वो डालेंगे सॉइल जो हमने क्लीन की है। एंड देन वी स्टर इट, उसको अच्छे से पानी के अंदर वो सॉइल मिक्स करेंगे और एक लकड़ी लेके सॉइल को अच्छी तरह से स्टर करेंगे, डिज़ोल्व द सॉइल इन वाटर, और उसके बाद वो पानी को रख देंगे, वो ग्लास को टेबल के ऊपर रख देंगे अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे द सॉइल सेटल्स डाउन इन वेरियस लेयर्स। सबसे नीचे की लेयर ग्रेवल, वो काले काले रंग के जो पत्थर होते हैं वो सबसे नीचे होंगे, ग्रेवल, और उसके ऊपर होगा सैंड, यू नो व्हाट इज सैंड, रेत। उसके ऊपर होगा क्ले, स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्ले। उसके ऊपर वाटर, और वाटर के ऊपर सबसे ऊपर एक काली काली चीज़ तैर रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। व्हाट इज़ ह्यूमस? ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। जो एनिमल्स या प्लांट्स जो मर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। ये सबसे ऊपर तैरेगा ह्यूमस। नाउ हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल बनती कैसे है? सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स जब टूटते हैं तो उससे बनती है सॉइल। सो हाउ डू दे ब्रेक? कैसे टूटते हैं? तो रॉक्स ब्रेक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। विंड, कभी जब बहुत हवा आती है बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं एंड दे ब्रेक डाउन। एंड रिवर्स, पानी बार बार पत्थर से टकराते हैं तो वो भी टूट जाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स टूट जाते हैं। और क्लाइमेट की वजह से, और रॉक्स के अंदर सपोजिंग क्रैक हो जाए एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन उसमें वाटर जाए, और विंटर सीजन में इफ़ इट इज़ वेरी कोल्ड माउंटेन्स तो वो बर्फ़ बन जाती है, आइस, एंड देन रॉक्स ब्रेक, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक into small pieces and later on it forms into soil is called weathering. A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. Supposing earth is a cake and you cut one piece, तो हमें दिखेंगे उसके layers होंगे. So let us see the layers of the earth. You see A horizon, then B horizon, C horizon, bedrock. Let us see soil profile. Let us see soil profile. Soil profile can also be seen while digging a well. हम कुआं खोदते हैं या बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाने के लिए हम ज़मीन को खोदते हैं तो भी हमें soil profile दिखता है. So let us see each layer one by one. सबसे ऊपर की लेयर, the uppermost horizon is generally dark in color. डार्क होता है बिकॉज इट हैज़ ऑर्गेनिक मैटर इन इट. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ह्यूमस अभी हमने पढ़ा इज़ द डेड ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. तो हम लोग भी ऐड करते हैं सॉइल में ह्यूमस, खातर जिसको बोलते हैं, वो ऐड करते हैं. तो वाई वी ऐड दिस? बिकॉज इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. सॉइल को अच्छा बनाता है, फर्टाइल बनाता है, और जो प्लांट्स उसमें ग्रो होते हैं उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स. तो ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. तो ये जो लेयर है सबसे ऊपर की, जिसको ए हॉराइजन बोलते हैं या टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, दिस इज सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. पानी उसके अंदर रह सकता है, रिटेन हो सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल या फिर ए हॉराइजन. नेक्स्ट लेयर है बी हॉराइजन. अच्छा, अब ए हॉराइजन में क्या है? इट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लांट्स इसी हॉराइजन में ग्रो करते हैं. इट कंटेन्स ह्यूमस,
और उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहते हैं, लाइक वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स मतलब चूहे, मोल्स, बीटल्स, ये सारे टॉप सॉइल में रहते हैं। और जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो भी टॉप सॉइल में होते हैं। नाउ नेक्स्ट लेयर इज कॉल्ड बी हॉराइजन। अब ये बी हॉराइजन में क्या है, ह्यूमस कम होता है और इसकी जो ये लेयर है हार्ड होती है, इट इज़ कॉम्पैक्ट, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं या फिर बी हॉराइजन। फिर थर्ड लेयर पे आए हम लोग। थर्ड लेयर को क्या है, सी हॉराइजन। सी हॉराइजन। अब सी हॉराइजन इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। ये रॉक्स होते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर जिसमें क्रैक्स होते हैं, वो टूटे टूटे होते हैं, क्रैक्स होते हैं। और उसके नीचे द फोर्थ लेयर इज कॉल्ड द बेड रॉक। ये बहुत हार्ड है और इसको स्पेड से तोड़ना या डिग करना बहुत मुश्किल है। सो वी हैव सीन अर्थ का जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ हॉराइजन्स। ए हॉराइजन सॉफ्ट लेयर कंटेन्स ह्यूमस, ऑल द प्लांट के रूट्स हैं, एनिमल्स लिविंग इन द प्लांट, ऑर्गेनिज्म, रोडेंट्स, वॉर्म, सब इसमें रहते हैं। बी हॉराइजन हार्ड है, इट इज़ हार्ड। सी हॉराइजन इसमें रॉक्स है विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। बेड रॉक ये सबसे लास्ट लेयर है, ये हार्ड है, दिस इज़ वेरी वेरी हार्ड। सो वी हैव सीन द सॉइल प्रोफाइल, ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, देन सी हॉराइजन और उसके बाद आता है बेड रॉक। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। अगर आप कभी ट्रेन से जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत तरह के सॉइल्स होते हैं। कहीं कहीं सॉइल आपको ब्लैक दिखती है, कहीं रेड होती है, कहीं येलो कलर की होती है। सो सॉइल, नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक सॉइल टाइप्स। नाउ वी नो दैट हाउ इज सॉइल फॉर्म, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स जब टूटते हैं तो सॉइल फॉर्म होती है। वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। अब ये जब टूटती है छोटे छोटे मटेरियल होते हैं, ये क्या होते हैं, सैंड, क्ले। सैंड रेत, क्ले इज मिट्टी। सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स आर फॉर्म। अभी सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स के वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टूटने के। अभी रॉक्स में जो पेरेंट है दैट इज़ द पेरेंट। रॉक्स में जो मटेरियल है टूटने के बाद वही मटेरियल उसमें से निकलता है। अगर उसमें सैंड ज़्यादा है तो वो सॉइल में सैंड ज़्यादा होगा, क्ले ज़्यादा है तो क्ले ज़्यादा होगा। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। अभी रॉक में होता है सैंड है, क्ले है, सिल्ट है एंड ह्यूमस है, ऑल दीज थिंग्स मिक्सचर को बोलते हैं सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, plant roots and earthworm are also important parts of any soil. The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various size. अब soil में क्या particle कितने proportion में है उस पर डिपेंड होता है soil की टाइप क्या है। तो soil मतलब sandy soil होता है, clay soil होता है, loamy soil. Mostly soil are 3 types: clay soil, sandy soil and loamy soil. तो देखते हैं पहले sandy soil क्या है। अगर सॉइल में सैंड ज़्यादा है, बिग पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स तो उसको बोलते हैं सैंडी सॉइल। अगर सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं क्लेई सॉइल। इफ़ द अमाउंट, और दोनों का अमाउंट अगर सेम है कि सैंड भी 50% है, क्ले भी 50% है, तो उस सॉइल को बोलते हैं लोमी सॉइल। तो सॉइल कितने टाइप की हुई, 3 टाइप, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। अब तीनों टाइप के सॉइल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। लेट अस सी फर्स्ट सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल में सैंड ज़्यादा है, दैट मीन्स बिग पार्टिकल ज़्यादा है, तो दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, तो उनके बीच में जगह ज़्यादा है, बिकॉज स्पेस इज़ मोर, तो एयर ज़्यादा होती है उसमें। सॉइल इज़ वेल एरेटेड, उसमें हवा अच्छी आती जाती रहती है सैंडी सॉइल में। लेकिन अगर आप सैंडी सॉइल में पानी डालें तो पानी एकदम से फिल्टर हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, क्योंकि इस पानी को पकड़ने के लिए स्मॉल पार्टिकल्स नहीं है, तो वाटर फटाफट ड्रेन हो जाता है। तो सैंडी सॉइल्स क्या है, लाइट है। सैंडी सॉइल इज़ लाइट, वेल एरेटेड एंड रैदर ड्राई। तो सैंडी सॉइल ड्राई होती है, वेल एरेटेड, उसमें हवा ज़्यादा होती है, बिकॉज पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होते हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है एंड द स्पेस इज़ कवर्ड बाय एयर। नाउ क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स बहुत सारे ज़्यादा होते हैं और वो एक दूसरे से पैक रहते हैं, तो स्पेस बहुत कम है,
तो उसमें एरेशन ज़्यादा नहीं होता, एयर ज़्यादा नहीं होता. तो इफ़ यू पुट वाटर इन क्ले सॉइल, तो वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले. तो क्ले सॉइल में पानी ज़्यादा होता है और एयर इज़ लेस, बट दे आर हैवी. सो सैंडी सॉइल्स लाइट होते हैं, क्लेई सॉइल हैवी. अगर हम क्लेई सॉइल में पानी डालें तो पानी उसमें रह जाता है और कीचड़ टाइप बन जाता है. नाउ बोथ सॉइल हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सैंडी सॉइल में एयर ज़्यादा है, वेल एरेटेड. क्लेई सॉइल में लेस एरेशन. सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, क्लेई सॉइल में पानी को होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. क्लेई सॉइल हैवी है एंड सैंडी सॉइल इज़ लाइट. लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए दोनों टाइप ऑफ सॉइल से ज़्यादा अच्छा है लोमी सॉइल. लोमी सॉइल क्या है? लोमी सॉइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और एक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं सिल्ट. तो लोमी सॉइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट. नाउ व्हाट इज सिल्ट? सिल्ट जो है आपको रिवर बेड्स में मिलता है. सिल्ट अकर्स एज ए डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, और जो साइज़ है सिल्ट का वो सैंड से छोटा है और क्ले से बड़ा है. एंड लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस. तो ह्यूमस मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है. तो बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज लोमी सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स सैंड, क्ले एंड सिल्ट. सैंड आर बिगर पार्टिकल्स, क्ले आर वेरी फाइन पार्टिकल्स, और सिल्ट जो है उसका साइज दोनों के बीच में है. So we have seen which type of soil is best. Now activity 9.3, collect samples of clay soil, loamy soil and sandy soil. उसमें से जो भी पत्थर वत्थर निकाल दो, रॉक्स निकाल दो, घास निकाल दो, एंड देन यू ऐड वाटर. थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इनको आटे की तरह गूंदना. नीड द सॉइल, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे सॉइल को गूंदना है. एंड जस्ट इनफ वाटर सो दैट वी कैन मेक ए बॉल. एक बॉल हम बना सकें. पानी इतना डालना है कि बॉल बन जाए, लेकिन ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी स्टिकी. ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल. अब बॉल बनने के बाद ऑन ए फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू ए सिलेंडर. बॉल को रोल कर लो सिलेंडर बनाने में. आई एम श्योर सैंडी सॉइल टूट जाएगा, बॉल विल ब्रेक. एंड देन ट्राई टू मेक ए रिंग. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैम्पल ऑल्सो. डज द एक्सटेंट टू विच द सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप. अब कौन सी सॉइल है वुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज. नेचुरली वी नो दैट क्ले विल बी बेटर फॉर मेकिंग. क्ले सॉइल चिकनी होती है, उसको गूंद सकते हैं. यू कैन सी दिस डायग्राम. डायग्राम ए, नीड द सॉइल, सॉइल को गूंदो. फिर बी, सी उसको बॉल बनाया. डी सिलेंडर बनाया. ई रिंग बनाई. ट्राई टू मेक दिस and write the observation. You have listed some of the uses of soil. तो हम देखेंगे कि जो पॉट्स वगैरह वो क्ले से अच्छी बनती है. सैंड, आप सैंड से पॉट्स नहीं बना सकते. स्टैचूज़, यूटेंसिल्स जो बर्तन वगैरह बनते हैं, यू कैन नॉट मेक दिस. तो चिल्ड्रन, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द लेसन. Try to see this video once and twice and try to understand the lesson. If you have any doubt, प्लीज़ मैसेज टू मी. मुझे मैसेज करना. आई विल गिव आंसर टू योर मैसेज एंड ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.